Hello aspirants, welcome to the channel your UPSC Notes. How are you all? Let me know in the comment section. If you're not good, if any problem, I'll try to help you out. Alright? So as you all know, on this channel I share with you all my own notes, my own handwritten notes, so that you can get an idea how you can make notes short, which is short, crisp and meaningful, and at the same time जो आपको बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा. अगर आप मेरे नोट्स से आइडिया लेकर अपने नोट्स बनाते हैं तो आपको लास्ट मोमेंट पर इसे रिवाइज एंड मेमोराइज करना भी बहुत ईजी हो जाएगा. And also I would like to add, if you want note on any specific topic, or if you are not sure how to make notes on a particular topic and you are lost, then please comment in the comment section. I will definitely help you out on that. I'll share my notes on those topics as well. I will prioritize them. So before starting, I would request you all, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. आपका बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा. यू हैव टू जस्ट प्रेस योर फिंगर ऑन दोज icons, like, share and subscribe. It will really help me and help you all who are in the journey. We will grow together. So let's start. So today's topic is distribution of ocean and continent. Distribution of ocean and continent. It is a topic in the geography. In this topic we will learn about different theories. There are different theories कि ocean and continents जो अभी अपनी present state में है वो कैसे आया, what was the process to it, how it formed, how it shaped in its present form. Alright, so the first theory which is there is Continental Drift Theory. Continental Drift Theory. This theory was given by Alfred Wegener in 1912. I have included in this these details also in this note as well, so you will get as we go further. So this theory was given by Alfred Wegener in 1912. He was German meteorologist. He was German meteorologist. So आपको ये छोटी छोटी चीज़ें 4-5 वर्ड्स ये लिख लोगे तो आपको आंसर एक डिफरेंट तरह से प्रेजेंट होगा. the person who will check your answer will know कि आपने सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ी. the person you are giving importance to the person who has worked upon that. तो आपको एटलीस्ट अच्छे मार्क्स चाहिए तो साइंटिस्ट का नाम, अगर किसी ने थ्योरी प्रपोज की है उनका नाम और his profession and year you can skip, but if you write it will really fetch you good marks. So what was the theory all about? First we will see what did he say, what was his theory. Then I will also explain, this is a 1-page note. I will also explain what are the evidences for this theory. So the Continental Drift Theory says, what he said. He said, Mr. Alfred Wegener said, first I have written it in point wise, so it is easy. You should also do like that. और मैंने यहाँ जैसे डायग्राम बनाया है और फिर मैंने यहाँ एक सेंटेंस फॉर्म में लिखा है what you can do. एक मैंने सब पॉइंट डाल के सेंटेंस लिखा है. what you can do, you can also write एक एरो बना के फ्लो चार्ट में भी आप लिख सकते हैं कि अरेंज अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड ब्रोक डाउन, फिर उसको ब्रैकेट में जुरासिक पीरियड, और ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं, एक फ्लो चार्ट में भी बना सकते हैं. सो let me explain how I have made it. So first उन्होंने कहा, एल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि पहले there was a huge continent. उसका नाम क्या था? Pangaea. Pangaea was a huge continent and उसके around this was a single landmass on the planet. Single landmass on the planet. It was very huge. Its name was Pangaea. तो उसके अराउंड चारों तरफ ओशन था. Obviously जब एक ही ओशन है इट विल बी वेरी ह्यूज, तो उसका नाम उन्होंने दिया पैंथलासा. सो उन्होंने कहा देयर वाज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट पैंजिया, वन कॉन्टिनेंट, एंड अराउंड इट वाज ह्यूज ओशन पैंथलासा. एंड व्हेन इट वाज, उन्होंने ये भी बोला ये था ड्यूरिंग पर्मियन पीरियड 250 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 25 करोड़ साल पहले. तो 250 मिलियन ईयर्स एगो, और ये पीरियड क्या था? पर्मियन पीरियड. फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने नेक्स्ट बोला
कि उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द पैंजिया विच वॉज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट इट स्प्लिट इनटू टू. ये कब हुआ, ये हुआ 200 मिलियन ईयर्स एगो, ट्रायासिक पीरियड में. तो मतलब 50 मिलियन तक तो वो ऐसा ही रहा, 50 मिलियन ईयर्स तक इट वॉज इन द शेप ऑफ one continent Pangaea and then Panthalassa surrounding it, and then उसके 50 मिलियन ईयर्स के बाद 200 मिलियन ईयर्स पहले तो ये स्प्लिट होने लगा, इट स्प्लिट इनटू टू. तो दो में क्या हुआ, फर्स्ट इट फॉर्म द फर्स्ट पार्ट बिकेम लॉरेशिया और वी ऑल्सो नो अंगारा लैंड, लॉरेशिया और अंगारा लैंड. तो इसमें क्या हुआ, जब फर्स्ट पार्ट में जो लॉरेशिया अंगारा लैंड में कौन कौन से लैंड मासेस आते हैं, इट कवर्स एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका वो अंगारा लैंड में आ गया. और दूसरा पार्ट जो स्प्लिट हो गया इसका क्या बन गया, गोंडवाना लैंड. गोंडवाना लैंड विच वॉज इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका. सो बेसिकली नदर्न पार्ट, as we know, northern part of the continent became Laurasia or Angara land and southern part became Gondwana land. So India became the part of Gondwana land. So third उन्होंने बोला ये तो ट्रायासिक पीरियड में हुआ, फिर 55 मिलियन ईयर्स तक ऐसा रहा. देन उन्होंने बोला जुरासिक पीरियड जब आया 145 मिलियन ईयर्स एगो, 145 मिलियन ईयर्स एगो जुरासिक पीरियड में क्या हुआ, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड ब्रोक डाउन फर्दर. तो पहले तो ये पैंजिया जो बड़ा सा था वो दो हो गया, अब दो में क्या हुआ, ये जो अंगारा एंड गोंडवाना थे वो भी ब्रोक होने लगे, दे स्टार्टेड ब्रेकिंग डाउन फर्दर. तो जब फर्दर ब्रोक डाउन हुए तो क्या हुआ, उसको मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज एंड इट इज क्लियर, योर नोट शुड बी क्लियर. सो फोर्थ स्टेज आता है क्रिटेशियस पीरियड. क्रिटेशियस पीरियड कब हुआ, 65 मिलियन ईयर्स एगो, 6.5 करोड़ साल पहले. उस पीरियड में क्या हुआ, कॉन्टिनेंट्स गेट्स फर्दर स्प्लिट समवॉट एंड समवॉट ऑर्गेनाइज्ड इन प्रेजेंट मैनर. तो 65 मिलियन ईयर्स एगो में जो अंगारा एंड लॉरेशिया जो ऑलरेडी ब्रोक डाउन हो गए थे 145 मिलियन ईयर्स एगो, वो 65 मिलियन ईयर्स एगो फिर से वो और ब्रेक डाउन हुए. तभी तो हम देखते हैं डिफरेंट फ्रैगमेंट्स, तो कंट्रीज जो हैं वो फर्दर ब्रोक डाउन और कुछ आज के जैसा ऑर्गेनाइज हो रही थी, ऑर्गेनाइज, दे स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग इन द प्रेजेंट फॉर्म एज वी सी. तो अब क्या है, प्रेजेंट डे में क्या है, ऑल कॉन्टिनेंट्स इन देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन. तो 65 मिलियन ईयर्स एगो से लेके अब तक दे आर 65 million years ago the process started of what we see today in the present time. All right, so the continental drift theory में you can see in the box I have made a picture. इसका क्या था, हम देखते हैं ना कभी कभी नहीं, we know कि हम यहाँ पे राजस्थान के एरिया में ओशियन हुआ करता था. ऑल राइट, तो बट अब नहीं है. हाउ, we still have like parts of traces of snow. या हम ये देखते हैं कि जो ट्रॉपिकल रीजन में पोलर रीजन जैसा क्लाइमेट है, पोलर क्लाइमेट है कहीं कहीं पे, या कहीं पे पोलर रीजन में ट्रॉपिकल क्लाइमेट है in some area. Why? This has been explained by Alfred Wegener through continental drift theory. What he said, you see, this diagram you will have to make if this question continental drift theory comes into the exam. So this you see, this is the position 1. This is, imagine कि ये वाला पिक्चर नहीं है अभी, ये जो है this and this is one. First this is not there. तो ये जो है this is a land mass. Alright, it is a continent. Imagine it is a single continent. Pangaea है और position 1 Pangaea यहाँ पे है. क्या होगा, तो हम as we all know this belt of the earth, planet earth is tropical region, and up and down we have polar regions. This is south pole, this is north pole, and बीच में tropical region है. The climate have tropical, this is a tropical region climate है, और यहाँ पे cold है और यहाँ भी cold है. So what happened, this Pangaea
यहाँ पे था, तो आधा वो उसका जो इसका क्लाइमेट कैसा था, हाफ वॉज ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड हाफ वॉज पोलर क्लाइमेट. फॉर एग्जाम्पल हम अपने समझने के लिए कर लेते हैं कि चलो यहाँ पे पूरा स्नो है, दिस इज वाइट, स्नो है, पोलर रीजन है, पूरा स्नो है, स्नोई है, और यहाँ पे पूरा ग्रास या फॉरेस्ट है, इट इज अ बिट डार्क रीजन. सो व्हाट हैपेंड, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में उन्होंने क्या बोला है कि ये जो कॉन्टिनेंट, ये जो पोजीशन 1 पे है, दिस मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट फ्रॉम पोजीशन 1 to 2 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस टाइम के साथ साथ धीरे धीरे, और दिस वी ऑलरेडी नो, अभी भी हमें पता है कि द प्लेट्स आर नॉट not in stagnant position, they are moving, the plates of the earth are still moving, the continents are moving, we don't have reached, the earth has not reached to its stable position. तो उन्होंने क्या कहा, अल्फ्रेड वेगनर ने बोला कि कॉन्टिनेंट पोजीशन 1 से ये इसने मूव करना स्टार्ट किया वक्त, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स एगो उसको यहाँ से यहाँ में जाने में लगे. सो इट स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम दिस पोजीशन. तो क्या हो गया, जब ये आप देखो ये ऐसे मूव कर रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, जब यहाँ पे आ गया द पोलर क्लाइमेट इन ट्रॉपिकल रीजन, तो ये ऑब्वियसली ये और ऊपर चला गया, दिस पोर्शन हैज गॉन अप हियर एंड दिस पोलर क्लाइमेट हैज गॉन डाउन हियर इन द ट्रॉपिकल रीजन. सो पोलर जो पोलर क्लाइमेट था वो ट्रॉपिकल रीजन में आ गया, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट था वो पोलर रीजन में चला गया. दैट इज व्हाई आई हैव रिटन पोलर क्लाइमेट इन द ट्रॉपिकल रीजन एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन द पोलर रीजन, दिस इज कॉन्टिनेंट. तो यहाँ से पोजीशन 1 से मूव करके वो पोजीशन 2 में चला गया. दैट इज व्हाट अल्फ्रेड वेगनर हैव एक्सप्लेन्ड इन हिज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. उन्होंने यही एक्सप्लेनेशन दिया कि मूवमेंट ऑफ द continent or the landmass from one position to other position explains the changes in the climate. Why do we have climate, tropical climate in the polar region and polar climate in the tropical region in some parts of the earth. All right, now let's see in what direction, what he said further in the theory. This is the theory, and what further he said, let us see. So aspirants, as you can see, I have in the notes, I have written the scholar name itself, because scholar name आप लिखेंगे तो you will fetch a good marks. It will leave a good impression on the examiners. So it is very important when you writing your UPSC answers, it is very important that you give due respect to the scholars who have given some theory, the writers, that really leaves a good impression on the examiners. सो उन्होंने अल्फ्रेड वेगनर ने, यहाँ पे आप नोट्स में लिख लीजिए, आप कभी भूलेंगे नहीं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट नेम. एंड हु वाज इट, व्हाट वाज हिज प्रोफेशन, ही वाज जर्मन meteorologist. So what he said, movement of the direction, in which direction of the movement was north and west, northward and westward. मैंने आपको दिखाया था, see here, I've already explained northward and westward. How is it northward? Because it is moving from here up, it is going up, तो नॉर्थ साइड में जा रहा है, और इट इज गोइंग दिस साइड अप, वेस्ट टू अप, इट इज नॉट गोइंग टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ, नो, दैट इज वाई द डिफरेंस इन द climate. That is why we find polar climate in tropical region and tropical climate in polar region. So he has given this explanation in the direction of the movement of the continent. So नॉर्थवर्ड एंड वेस्टवर्ड. कभी आपसे प्रीलिम्स में ये आ सकता है, प्रीलिम्स में अगर पूछ लिया कि इन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन विच डायरेक्शन द कॉन्टिनेंट मूव, इट वाज नॉर्थ एंड ईस्टवर्ड, तो गलत हो जाएगा आंसर. साउथ एंड वेस्टवर्ड गलत हो जाएगा. सो नॉर्थवर्ड एंड ईस्ट वेस्टवर्ड. और मैंने यहीं पे नोट्स में लिख लिया, अगर मूव कर रहा है तो क्यों मूव कर रहा है नॉर्थ में. अब ऐसा तो है नहीं कि चलो दे वर गेटिंग बोर्ड, यार इतने सालों से, मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स एगो से हम यहाँ पड़े हुए हैं एंड कुछ पार्टी करके आते हैं, नॉर्थ में चलते हैं, वेस्ट टुवर्ड्स वेस्ट एंड नॉर्थ, चलो पार्टी करके आते हैं, तो इस तरह से तो कॉन्टिनेंट्स मूव नहीं हुए. ऑब्वियसली देयर वर सम
सो आप नोट्स में यहाँ पे लिख सकते हैं पोलर फ्लीइंग फोर्स. पोलर फ्लीइंग फोर्स क्या कर रहा था, वो नॉर्थ में उसको पुश कर रहा था, एंड द टाइडल फोर्स वाज पुशिंग इट टू द वेस्टवर्ड. दीज फोर्सेस, यू विल लर्न मोर अबाउट दीज फोर्सेस in other chapters. So polar fleeing force and tidal force were the reason why the continent was moving towards north and west according to Continental Drift Theory, which was again according to Alfred Wegener. Now Alfred Wegener ने अपने points को prove करने के लिए he gave some evidences. He said, see, I'm not saying anything in air. I have evidence for whatever I am saying. So let's see what evidences did he gave for his continental drift theory. He gave, the first evidence he gave was jigsaw fit. Jigsaw fit क्या होता है? He said, he gave the example, the shorelines of Africa and South America facing each other have unmistakable match. What does it mean? It means आप जैसे puzzle लोगे, it is like a puzzle. आप उसको फिट करोगे, इट विल फिट प्रॉपरली, यू नो. तो वो इट इज फिटिंग लाइक अ पजल, you know. It is your task now. You can pause the video for a few moments and check the map, check the world map globe, और आप देखेंगे, आप चेक करिए, आपको लग रहा है कि what he said was correct, you yourself can validate it. आप ज्वाइन करके देखिए in your mind कि नॉर्थ अमेरिका जो है, सॉरी, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, आर दे, if you keep them together, are they matching, are they fitting in properly, as Alfred Wegener said. So he said the shorelines of Africa and South America have unmistakable match. मतलब हम दोनों को साथ में कर दे तो they will join together. Now the next the point evidence he gave for his continental drift theory was rocks of same ages across ocean. तो कौन सा ओशन है? Comment in the comment section and let me know कौन सा ओशन है between South America and Africa. Which ocean is that? You need to remember all these things. It is very important from prelims perspective. So the Atlantic Ocean, that which is dividing the South America and Africa, what happened, what he said, कि दोनों इतना बड़ा जाइंट ओशन है और दोनों पे जो रॉक्स पाई गई हैं उनके शोर्स पे, यू नो, इन ब्राज़ील कोस्ट पे, और जो वेस्ट अफ्रीका है उसकी कोस्ट पे जो रॉक्स पाई गई हैं उनकी एज सेम है, वो दोनों सेम एज की रॉक्स हैं. ही गेव एग्जाम्पल, उन्होंने बोला इतना जो वास्ट ओशन बीच में होते हुए ये कैसा पॉसिबल है? ये तो तभी पॉसिबल है when once upon in a time long ago they were joined, they were together, it was one land mass, all right. Then there was a split and it got separated and moved west and northward. तो उन्होंने ये एग्जाम्पल, ये भी अपना एक एविडेंस दिया है. नाउ टिलेट उन्होंने क्या बोला है? सेडिमेंट्री रिमेन्स ऑफ द ग्लेशियर डिपॉजिट फाउंड इन इंडिया, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा. व्हाट डज इट मीन? उन्होंने बोला भाई इंडिया, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, दीज आर नॉट पोलर कंट्रीज, है ना, दीज आर ट्रॉपिकल कंट्रीज, दे हैव ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स. तो वहाँ पे ग्लेशियर के सेडिमेंट्री रिमेन्स कैसे मिल गए हैं? जो अभी करंट ग्लेशियर है उसकी बात उन्होंने नहीं की है, जैसे इंडिया में सियाचिन ग्लेशियर है. ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, ही इज सेइंग जो रिमेन्स मिले हैं, you know, in those areas where it is not possible, it should not be there in today's time. What does it explain? तो उन्होंने कहा जो सेडिमेंट्री रिमेन्स है वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये पहले पोलर रीजन था और इट मूव्ड. It explains his continental drift theory movement, the polar region का जो sediment मिला है and tropical का polar में मिला है. So that also he gave an example, evidence. Then he talked about placer deposit. Another evidence he gave, he said there are rich placer deposits of gold in Ghana coast and absolute absence of source rock. In fact, gold bearing veins are in Brazil. मतलब घाना के कोस्ट पे प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड है, यू नो, बट वहाँ पे कोई सोर्स ही नहीं है. बिना सोर्स के कोई चीज़ हो सकती है क्या?
आप बताइए, कैन देयर बी एनीथिंग विदाउट इट्स सोर्स? देयर हैज टू बी अ सोर्स, राइट? तो वो बोल रहे वहां पे घाना पे कोई सोर्स ही नहीं है कि वो गोल्ड आया कहाँ से। उल्टा जो सोर्स मिल रहा है, जो गोल्ड बियरिंग वेन्स हैं, वो ब्राजील में हैं। तो ये व्हाट डज इट मीन? तो उन्होंने कंक्लूड किया कि इट वाज अर्लियर इट वाज वन लैंड मास। ऑलराइट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन व्हाट he gave next evidence was fossil distribution. Identical species of plants and animals on either side, all right, of oceans. What does it mean? What he wanted to say? उन्होंने कहा बीच में अटलांटिक ओशन है, या फिर आप इंडियन ओशन ले लीजिए। इंडियन ओशन इज बिटवीन अफ्रीका एंड इंडिया। तो ये जो अक्रॉस ओशन इतने ह्यूज वास्ट ओशंस हैं, उनके अक्रॉस, उनके ऑन ईदर साइड ऑफ द ओशन जो प्लांट की स्पीसीज हैं, यू नो, ऑन देयर कोस्ट, एंड जो एनिमल्स की स्पीसीज, दे आर सेम, they are found this side of the ocean also and that side of the ocean also. That means they were at some point of time in the past they were joined and then they split. That was another explanation. और उन्होंने किस स्पीसीज का एग्जाम्पल दिया. फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी, यू कैन राइट, बट आप सब तो नहीं लिख सकते, सब याद नहीं कर सकते, तो मैं आई हैव रिटन वन, यू कैन राइट एनी अदर. सो लेमूर्स, उन्होंने कहा लेमूर्स जो है वो इंडिया में भी मिलता है एंड Madagascar में and Africa में भी. So this is one species which is found across the ocean. Now the next example that he gave, next evidence to support his theory, he gave paleomagnetic evidence. He gave paleomagnetic evidence that he gave magnetic orientation of continents. He said the continents have certain, he said the continents have certain magnetic orientation. All right, what is that? I will explain next when I explain the weaknesses of this theory. So all these 5-6 evidences that he gave, Mr. Alfred Wegener, to support his continental drift theory. ये आपको अगर मेंस में आता है तो you will have to write all of this. Now let's see what was the weakness of this theory. Weakness of the continental drift theory given by Mr. Alfred Wegener. उस theory का weakness क्या था? Weakness was forces of movement. The continents क्या है? What does it mean? Continents were neither moved by tidal force nor polar fleeing force. तो बाद में जब later scholars they researched, you know, they tell कि कॉन्टिनेंट्स टाइडल फोर्स से कॉन्टिनेंट्स मूव नहीं करता, ना ही तो पोलर फ्लीइंग फोर्स से कॉन्टिनेंट मूव करता है. इट वाज नॉट, दिस वाज द वीकनेस ऑफ हिज थ्योरी. ही गेव द रॉन्ग evidence, sorry, not wrong evidence, wrong explanation. He could not find at that point of time the correct explanation for his theory. So the continents cannot be moved through tidal force and polar fleeing force. That was the first weakness of continental drift theory. What was the second weakness in the continental drift theory? Second weakness was imperfect jigsaw fit. आपने तो वीडियो पॉज करके पता कर लिया होगा it is correct or not. तो imperfect jigsaw fit क्या था? Especially near ocean floors at the continental base. इसका क्या मतलब है? ऊपर से तो हम ज्वाइन कर देंगे. अब as we all know, हम नीचे जो ओशन है वहाँ पानी ही पानी कोर तक नहीं है. There is a sea bed, ocean floor है. After some depth, a few kilometers, तो ocean floor is there. तो the later scientists थे, with their further discoveries and research, they said कि आप ज्वाइन तो कर देंगे. आप बोल रहे हैं कि जिक्सॉ फिट मतलब लैंड मास तो मैच हो रहा है. व्हाट अबाउट द ओशन फ्लोर? आप लैंड मास जब मैच करेंगे, जिक्सॉ फिट की तरह उसको फिट करेंगे, तो वेयर विल द फ्लोर गो? विल दे ओवरलैप ईच अदर? दैट इज नॉट पॉसिबल. ऑलराइट, तो उन्होंने कहा कि ओशन फ्लोर के पास
इम्परफेक्ट फिट है. ओशन फ्लोर जो कॉन्टिनेंटल बेस है, कॉन्टिनेंटल बेस का जो ओशन फ्लोर है वहाँ पे जिग्सॉ फिट नहीं होता. इट फेल्स, इट जस्ट फेल्स. सो दैट इज द वीकनेस ऑफ दैट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. थर्ड पॉइंट क्या दिया, व्हाट वाज द थर्ड वीकनेस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? कॉन्टिनेंट डोंट जस्ट मूव नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन. उन्होंने कहा, ही सेड कॉन्टिनेंट बस एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, विच इज नॉर्थ एंड वेस्ट वॉर्ड. तो लेटर इट वॉज, दिस वॉज ऑल्सो डिसमिस्ड बाई द लेटर स्कॉलर्स दैट कॉन्टिनेंट डोंट जस्ट मूव नॉर्थ एंड वेस्ट वॉर्ड. एंड देन the next explanation, next weakness to his theory was, he said continents float on ocean floor without friction. He said continents जो है वो सिर्फ बिना किसी फ्रिक्शन के ओशन फ्लोर पे फ्लोट करता रहता है. इज दैट ट्रू? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. आपने फिजिकल ज्योग्राफी तो पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो पढ़िए NCERT, you know, then let me know in the comment section. I can explain this, but then again आपको खुद से भी कुछ करना पड़ेगा. अगर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी इतने में रह जाएगा. आप ये वाला चेक करके आओ और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आर दी कॉन्टिनेंट्स फ्लोटिंग ऑन द ओशन फ्लोर विदाउट फ्रिक्शन, विद फ्रिक्शन वो आप छोड़ दीजिए. आर दे फ्लोटिंग? दैट you need to comment in the comment section so that we can you have a unforgettable memory about the formation of the continents and everything. थोड़ा सा पढ़ेंगे आपकी ज़्यादा नॉलेज डेवलप होगी. So he said they just continents just don't just float on ocean floor without friction. Now the fifth weakness to the continental drift theory, which was given by Alfred Wegener. So others later scientists क्या, what did they say? Didn't talk मूवमेंट बिफोर 250 मिलियन ईयर्स एगो. भाई आप तो जो स्टार्ट कर रहे हैं फिर 250 मिलियन ईयर्स एगो से स्टार्ट कर रहे हैं. अर्थ दी पैंजिया था, पैंथलासा था, एंड देन इट स्टार्टेड मूविंग. व्हाट अबाउट बिफोर दैट? आपने तो मतलब बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ कवर किया, राइट? 250 मिलियन ईयर्स एगो इज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन this entire thing. All right, उसके पहले the earth is billions and billions of years old. आपने तो मतलब आपने तो 100 करोड़ भी नहीं साल कवर किया, billions तो छोड़ दीजिए. what about before that? What happened before that to the land mass, to the continent and ocean? तो उन्होंने बोला, so these are the weaknesses of the continental drift theory. but अगर कोई भी थ्योरी आती है तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो होता है. सो द कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस थ्योरी वॉज, इट वॉज द फर्स्ट फुल थ्योरी टू अटेम्प्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स विच लेटर लेड टू फर्दर डेवलपमेंट्स इन द फील्ड. देखिए, अगर कोई स्टार्ट ही नहीं करेगा कोई चीज़ तो वो आगे कैसे बढ़ेगी? कोई डिस्कवरी होती है, कोई काम होता है, ठीक है. एक आप पहली ईंट लगाएंगे, नींव रखेंगे, तभी तो पूरी इमारत खड़ी होगी, है ना. उसमें जो कमियां दिखेंगी उसको सही किया जाएगा. तो जो अल्फ्रेड वेगनर का जो इतना काम था वो वेस्ट नहीं गया. कुछ इंसाइटफुल हुआ, कुछ वीकनेसेस रहीं, और इससे क्या हुआ कि देयर वर अदर साइंटिस्ट हु वर मोटिवेटेड टू टेक स्टडी इन दिस फील्ड फर्दर. तो लेटर साइंटिस्ट ने इसको, उन्होंने जो अटेम्प्ट किया था कि मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, लेटर साइंटिस्ट ने उसको फर्दर कैरी फॉरवर्ड किया, एंड देन देयर वर डेवलपमेंट्स इन दोस फील्ड्स. सो दिस वाज द कंट्रीब्यूशन बाय द अल्फ्रेड वेगनर, एंड दिस इज ऑल फॉर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. तो मैंने इस वीडियो में पूरा ही कवर कर दिया है ये टॉपिक. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज entirely finished. Now continental drift theory के अलावा this is just one theory of distribution of continents ना. इसमें ये first theory है, इसमें ऐसी बहुत सारी theories हैं which is important for the UPSC perspective. UPSC के लिए आपको वो सारी पढ़नी पड़ेगी. तो इस वीडियो में मैं सिर्फ एक theory कवर किया है. Next I will take you to the ocean sea floor spreading theory. Then there is a convectional current theory एंड ओशन फ्लोर कन्फिगरेशन थ्योरी. ये सारी थ्योरीज हैं जो हम ब्रीफली देख के कर लेंगे. तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो,
And before I sign off, I would request you all with folded hand, please like now, subscribe now, so that we both can grow and help each other in this journey and help others who still have not discovered this channel. If you like, press like button, and then it will, YouTube algorithm will automatically recommend this video to those in your feed in this journey of UPSC, so that they can also take some benefit from this. All right, so thank you, see you in the next video. Bye bye, love you all.